दिस वीडियो इज गोइंग टू अबाउट कि आप किस निच में हैं. तो अगर आप सेकंड फॉर एग्जांपल यू आर इनटू अ बिजनेस ग्रुप, अगर आप बिजनेसेस को हेल्प कर रहे हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप बिजनेस को किस वे में हेल्प करना चाहते हैं. आर यू गोइंग टू हेल्प बिजनेसेस फॉर क्रिएटिंग इम्पैक्ट, यू गोइंग टू हेल्प बिजनेस फॉर अचीविंग गोल्स, यू आर हेल्पिंग बिजनेसेस टू गेन प्रॉफिट और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. क्योंकि जब भी आप ये सारी चीज़ें करोगे ना, तो दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट in your area. So if you are the one who has no idea how to take this to the next level, यानी अगर आप अपना एक सेक्टर बना रहे हो, if you have no idea कि exactly मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो I've been learning this. Employee retention, better ROI. So goals. The goals is actually basically किस किस चीज़ों के लिए होता है. The goal is basically for कि आप बिजनेसेस को किस चीज़ के लिए हेल्प करोगे. कैश फ्लो के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, इफ़िशियंसी के लिए, योर सस्टेनेबिलिटी के लिए, इम्पैक्ट के लिए, रीच के लिए. व्हाट आर यू एक्चुअली गोइंग टू हेल्प. मार्केट डोमिनेशंस के लिए, रेपुटेशन के लिए, इंक्रीज्ड रेवेन्यू, एम्प्लॉय रिटेंशन, बेटर ROI, फ्रीडम, कल्चर, ऑटोमेशन, कंप्लेंट्स. ये सारी जो चीज़ें होती है जिसके लिए आप यू आर गोइंग टू हेल्प एनी बिजनेसेस फॉर. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर गोइंग टू हेल्प पीपल विथ. सो आर यू गोइंग टू हेल्प पीपल विथ creating impact? Are you going to help people with to maintain the sustainability? Are you going to help people for freedom, automation, कंप्लेंट. किस चीज़ के लिए आप हेल्प कर रहे हो, वो चीज़ बहुत जाननी बहुत ज़रूरी हो जाती है. एंड दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प यू टू ग्रो फास्टर एंड हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इट एग्जैक्टली इट्स ऑल अबाउट. सो या एज इट्स नाइट टाइम, तो वो चीज़ें बंद हो गई थी. एंड दिस इज़ व्हाट इट सेज स्पोक्स. Then it comes to provide freedom, culture, automation, and compliance. Okay. Then it comes to spokes. Now let's understand what is spoke. What I would like you to do right now is, even though you're getting into the so the thing is that message clear होना चाहिए कि what you. So I have selected my thing is that after going through this, that is impact. कि after realizing all these things, I really understand that I can help people how you can create impact in your businesses by influencing people. So if you really resonate with my thought process and challenges, so please let me know in the comment box. So now I'm coming up with the concept next time, say next month onwards, that is how to build your influence. And this is what I'm going to come up with, because I realize कि इतना सब होने के बाद आई एम रियली हेल्प एनीबडी दैट हाउ यू कैन क्रिएट इन्फ्लुएंस ऑन एनी ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. सो दिस इज द वन थिंग विच आई रियलाइज्ड. नाउ सो अब अपना जो एग्जैक्टली आपका जो बिजनेस मॉडल होता है वो बहुत क्लियर होना बहुत ज़रूरी हो जाता है. बिकॉज वंस योर बिजनेस मॉडल इज गोइंग टू गेट क्लियर, पीपल आर एक्चुअली ऑटोमेटिकली गोइंग टू कम एंड लर्न फ्रॉम. सो दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. business growth niche, or if you're already in the business growth. So I want you to pick one word from this list. For example, the one word that I resonated the most was the word freedom. So that's why I created Freedom Business Model, Freedom Setup Challenge, Internet Lifestyle Hub. It's all around freedom being the core. So I want you to find out what is the core objective of your positioning online, and it cannot be multiple words. I want you to pick only one word. Okay? So if you want to serve businesses, what is that one word will you pick? And I wanted to type that what I'm doing is that I'm simultaneously learning and sharing things. Only one word, वो चीज़ cannot बहुत use two important words. है.
because I want you to own that space, and even if that word is not there So on this list, I'm just I keeping want you this to type first in a 5 word videos below, to be very which is raw, the goal that you because want to fulfill for. I really wanted to make 100 videos on this YouTube channel this year, this month, in within 20 days itself. तो मतलब मैंने ये फर्स्ट ट्राई किया है फॉर 2 वीडियोस, और फ्रॉम नेक्स्ट वीडियोस ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू शेयर अ माइंड. तो ये 2 वीडियोस मैंने रॉ की, बिकॉज जब तक हम ट्राई एंड टेस्ट नहीं करेंगे हमको चीज़ें मालूम नहीं पड़ेंगी. तो बिकॉज आई एम अ learner, plus I can share things at simultaneously, which is very important. And discipline, ये सारी चीज़ें ठीक है, आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, मगर अगर आप डिसिप्लिन को लैक करते हैं, यू हैव सम माइंडसेट इशू ना, यू विल नेवर गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल इन द जर्नी ऑफ एनीथिंग, बिजनेसेस एंड सेल्स. कोई भी चीज़ों के लिए ना यू विल नॉट बी एबल टू बिकम सक्सेसफुल, बिकॉज दैट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग कि सेल्स इज कंटिन्यूसली generating when you are putting consistent efforts and talking to people, having reply customers. जब तक आप ये सब सारी चीज़ें अपने अंदर अडॉप्ट नहीं करोगे ना, तब तक आपको कोई चीज़ का सेल या बेनिफिट नहीं आएगा. सो दिस इज सो वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू क्रिएट अ इम्पैक्ट, how to create impact over people so that people can resonate with you. यानी आपसे वो लोग रेजोनेट कैसे होंगे. एंड अगर हम कोई चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं ना, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक रेस्ट्रिक्ट होनी चाहिए. वी हैव टू हैव अ माइंडसेट व्हिच कैन एक्सेप्ट एंड ओपन थिंग्स. जब तक हम हमारे माइंडसेट की ब्लॉक्स को नहीं हटाएंगे ना, तब तक चीज़ें हमारी तरफ चीज़ें ठीक नहीं होंगी. सो वर्क ऑन द माइंडसेट व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड या you need to understand one simple thing is selling. कि आप सेलिंग कर रहे हो या सर्विंग कर रहे हो, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब आप सेलिंग और सर्विंग के अंदर इसमें आ जाते हो ना, तो आपको पता चलता है कि कितना सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती है. सो ऑलवेज ओपन अप फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड लर्न एंड ग्रो.